Hello friends, how are you? So once again I have come for you after a little gap, no doubt. But again I have come, I thought that some economics topics you must know all this. These are basic things and this will help you a lot in doing this MBA courses. So इसमें क्या है मैं मार्जिनल कॉस्ट को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है? Marginal cost refers to the additional cost of producing one more unit of a good or service। मतलब अगर हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो सपोज ए ग्राफ इज लाइक दिस। इधर क्वांटिटी है, एक्स एक्सिस है, ठीक है, और इधर जो है ना कॉस्ट है। तो अगर क्वांटिटी बढ़ रहा है तो कॉस्ट भी बढ़ रहा है सपोज। तो हाउ मच इट इज इंक्रीजिंग like this. Suppose it is like this. Hmm? So quantity, if it is increased, and then cost is also increased per unit cost, how much it is increased? Suppose up to here, huh? You want to know how much cost is there per unit production, cost of production, and this is production, produced quantity. Suppose here it is 50 quantity is there. And for that, the cost is around, suppose 1000, 1000 rupees. So per unit cost is how much? Can you tell me? Per unit cost is equal to how much? 1000 divided by 50. So this is nothing but 20. So rupees 20 it is per unit cost. But suppose if you increase from here, if you go further 1 unit, so here it is 51. Okay, cost is increased to how much? It should be 1020, but suppose it becomes 1050. So when you increased from 50 to 51, the cost has gone to the level of 1050. So what is the difference for this particular unit when you increased? How much cost is incurred? So what will you do? You will subtract from 1050 minus 1000. So this will give you 50. And how much unit? For 1 unit above 50. So this is called marginal cost. If you add one more quantity, how much change in the cost of the total production? It may decrease, it may increase. The graph can be sloping down. It is going up. Normally, price, if you more produce, more raw material will be required, so more cost will be there, no doubt. But is it the same rate or it is going above? So you can take decision. आप डिसीजन ले सकते हो कि अब 50 यूनिट के बाद हमें एक और यूनिट प्रोड्यूस करना चाहिए कि नहीं। कंपनी कैन टेक डिसीजन ना कि सपोज आप बना रहे हो इतने दिनों से प्रोड्यूस कर रहे हो और पर यूनिट कॉस्ट आपके हिसाब से 20 रुपये आ रहा था। लेकिन अगर हम 50 से ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं, हो सकता है कि इसको सेल करने में ज्यादा खर्च करना पड़े, या रॉ मटेरियल अभी तक जो आप मंगा रहे थे वो इतने के लिए आपको एक अच्छा प्राइस मिल रहा था, लेकिन इसके बाद अगर आपको मंगाना है तो किसी और सप्लायर से मंगाना पड़े तो हो सकता है कॉस्ट बढ़ जाए, या लेबर आपको ज्यादा लगाना पड़ जाए, कुछ रिसोर्स से ज्यादा खर्च करने पड़ जाए, उस हिसाब से वो कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाए। तो वो हम डिसीजन ले सकते हैं एक मैनेजमेंट लेवल में कि अब हमें इस प्रोडक्ट को आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं और आगे प्रोड्यूस करना चाहिए कि नहीं।
So this gives a very good introspection. तो इसको हम फॉर्मूला में कैसे लिख रहे हैं? MC, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, इक्वल टू डेल्टा टोटल कॉस्ट। मतलब आप जब यहाँ पे 50 से 51 गए तो उसमें कॉस्ट में जो बढ़ोतरी हुई, दैट इंक्रीज इन द कॉस्ट, दैट इज डेल्टा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी। अभी 50 से 51 गया, सपोज अगर हम 50 से 55 पाँच पाँच का लॉट बनाते हो तो उसमें हम 5 का देखेंगे। 50 से 55 गए तो क्या वो 1,000 रुपये एक्स्ट्रा हुआ, 100 रुपये एक्स्ट्रा हुआ, या 150 हुआ, कि 200 हो गया, क्या हुआ? अगर वो ज्यादा हो रहा है तो हमें स्टॉप करना होगा, या अगर वो मैनेजमेंट की थॉट प्रोसेस होगी कि आगे बढ़ना है या नहीं। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। क्या है कंपनी का सिनारियो? A company produces smartphones. The total cost of producing 100 units is 200,000. That is 2 lakhs rupees. When the company increases production to 101 units, the total cost rises to 2 lakh 2,000. तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट क्या है निकालना है। अब जब 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था तो उसका कितना कॉस्ट था? एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट कितना था? 2 लाख डिवाइडेड बाई 100 कर दो, दैट इज 2,000, है ना? तो एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया 2 लाख डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया 2,000। उसने क्या कहा कि भाई 1 यूनिट हम और एक्स्ट्रा बनाना चाहते हैं। तो जब उसने 1 यूनिट आगे बढ़ाने का प्लान किया तो उसमें उसको कॉस्ट कितना है? 2,02,000। तो आप जो 101st यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, आपने यहाँ पे जो निकाला ना ऐसे, तो यहाँ पे 100 तक का था 2 लाख। उसके बाद जब आपने एक और बनाया तो यहाँ पे कितना आया? 2,02,000। ये 2 लाख, ठीक है। तो ये 100 था, ये 101 हो गया, ठीक है। तो ये 2 लाख था और 100 यूनिट जब प्रोड्यूस कर रहे थे 2,000। लेकिन आपने जो 101st भी किया तो क्या मार्जिनल कॉस्ट आ रहा है? 1 यूनिट एक्स्ट्रा जो किया तो 2,000 ही आ रहा है। तो देर इज नो चेंज। तो द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द 101st यूनिट इज 2,000 रुपीज। तो इस ऐसी स्थिति में क्या कंपनी डिसीजन लेगी, आप बताओ? कंपनी कैन कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम, हाँ 100 से 101 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सेम कॉस्ट है। अब एक डायग्राम देखो, ये इसमें क्या है? ये क्वांटिटी है इधर एक्स एक्सिस में, है ना, एंड वाई एक्सिस में प्राइस एंड कॉस्ट। तो यहाँ पे 3 ग्राफ हैं। एक है एबीसी। एबीसी क्या? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? जो पर यूनिट खर्च होता है। अगर आप 1 यूनिट बना रहे हो तो कुछ रुपए खर्च हो रहे हैं, 2 यूनिट बना रहे हो मतलब वो अगर फिक्स्ड है, वो उतना मार्केटिंग में खर्च होगा, उतना डीलर कमीशन देना होगा, इतना कुछ है वेरिएबल। हर प्रोडक्ट को आपको सेल करने में इतना खर्च होगा, वो वेरिएबल कॉस्ट है। या रॉ मटेरियल में खर्च होगा, आप 5 बनाओगे तो ज्यादा खर्च होगा, एक बनाओगे तो कम खर्च होगा, है ना? तो वो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और एवरेज टोटल कॉस्ट क्या हो, जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों एडेड है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? जो आपका रेंट है, या फिर मंथली फिक्स्ड कॉस्ट सैलरीज है, दीज आर फिक्स्ड कॉस्ट। Electricity है, these are fixed costs. So that fixed cost plus this variable cost, you add it, it will become total cost, and you divide it by total number of production. So it will be average total cost.
तो ये आपका एवरेज टोटल कॉस्ट है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो क्या है? हर एक यूनिट को जब आप आगे बढ़ा रहे हो, ठीक है, हर यूनिट पे हम मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं। यहाँ 1 है, या 2 है, या 3 है, क्वांटिटी इधर है ना, और इधर क्या है? कॉस्ट है। तो हम शुरू से ही ये निकाल सकते हैं कि ये मार्जिनल कॉस्ट घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो शुरू में क्या होता है? जब क्वांटिटी बढ़ती है, मार्जिनल कॉस्ट कम होता है। फिर सपोज ये लिखा है ना, फ्रॉम शॉर्ट टर्म सप्लाई, तो सडनली इफ यू नीड टू सप्लाई very huge number, so then the marginal cost will be very high because you have done some unplanned thing. So this marginal cost is like this, and this is average total cost, and this is average variable cost. So like this, you will get that. This gives you, ये क्या देता है आपको? एक पिक्चर देता है कि आप वेरिएबल कॉस्ट किस तरह से वेरी कर रहा है, टोटल कॉस्ट कैसे वेरी कर रहा है प्रोडक्शन के अनुसार, और फिर मार्जिनल कॉस्ट क्या है। मार्जिनल कॉस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको डिसीजन मेकिंग में। कौन कौन से डिसीजन मेकिंग में? Profit maximization. Firms aim to produce up to the point where marginal cost is equal to marginal revenue. अब आप जो प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो उसमें जितना आपको खर्च एक्स्ट्रा पड़ रहा है, क्या उतना रेवेन्यू आ रहा है या नहीं, वो जानोगे तभी तो आप डिसीजन लोगे। और 100 हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, 100 प्रोडक्शन से हमें अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि डिमांड बढ़ गया, 100 से हम 110 भी बना सकते हैं, लेकिन क्या अदर this additional 10 units if you produce, is it viable or not? Are you getting the profit or not? इन 10 में कहीं खर्च ज्यादा और रेवेन्यू कम, ऐसा तो नहीं है। तो वो डिसीजन लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन हेल्प्स इन डिसाइडिंग हाउ मच टू प्रोड्यूस विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। अब आपके पास ABC 3-4 तरह के प्रोडक्ट हैं, तो उसमें आप डिसाइड कर सकते हो कि किसको आप प्रमोट करोगे, किसको नहीं करोगे। हाँ, तो किस में आपको ज्यादा खर्च करना चाहिए, किस पर ज्यादा आपको एफर्ट लगाना चाहिए, किस में ज्यादा मैन पावर रखना चाहिए, किस में ज्यादा जो अभी आपके अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको यूज करना चाहिए। कॉस्ट कंट्रोल ट्रैक्स वेयर कॉस्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग डिसप्रोपोर्शनेटली। तो अगर मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो जा रहा है तो यू हैव टू कंट्रोल दैट। मार्जिनल कॉस्ट से आपको पता चलेगा कि आप जब प्रोड्यूस कर रहे हो तो हर यूनिट को बढ़ाने में कहीं पे बहुत ज्यादा, कहीं पे बहुत कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिस्प्रोपोर्शनेट अगर है तो यू विल हैव योर ईयर्स शुड बी वेरी मच अलर्ट, यू विल हैव टू वेरी मच अलर्ट। तो दिस गिव्स यू लॉट ऑफ दिस सिनेरियो कि कहाँ पे हमें कंट्रोल करना है, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है, कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है ना। सो क्या ये इंपॉर्टेंट चीज था कि नहीं? बताओ। यू मस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स। आप हमें मोटिवेशन देते रहो, मैं आपको नई नई चीजें बताता रहूँ। धन्यवाद, थैंक यू।